لب پھول دہن پھول زخم پھول بدل پھول. کیا بات ہے. اس وقت سبحان اللہ کہنا منع ہے؟ ارے بولو یار مچل کے سبحان اللہ بولو, شرماؤ مت. کیونکہ یہ محفل اگرچہ ایک نکاح کی محفل ہے, لیکن میرے نبی ہمارا ایمان عقیدہ ہے کہ یقین ہی نہیں, حق الیقین ہے میرا کہ ذرا ذرا کی ہے ان کو خبر مدینے میں. ہم یہاں بیٹھے اور آقا ہمارے حرکات و سکنات کو دیکھ رہے. سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول, اور لب پھول دہن پھول زخم پھول بدل پھول. اور یا رسول اللہ تن کا بھی ہلائی سے ہمارے نہیں ہلتا, تن کا بھی ہلائی سے ہمارے نہیں ہلتا. اور تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ مہن پھول, اور لب پھول دہن پھول زخم پھول بدل پھول. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول, لب پھول دہن پھول زخم پھول بدل پھول, لب پھول دہن پھول زخم پھول بدل پھول. اور واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ. وہ گل کون ہے؟ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات ہے. آپ لوگ یہی توجہ رکھیے. واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ. یہاں گل کہا گیا کس کو؟ ہمارے آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو گل کہا گیا, یعنی پھول کہا گیا. یہ خالی ایسے ہی نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کا کوئی بھی کلام قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے. تاریخ گواہی دیتی ہے مدینہ طیبہ کی پرکیف بہاریں ہیں. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ افروز ہیں, تمام صحابہ آقا کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں. یوں محسوس ہو رہا ہے 14ویں کا چاند ستاروں کے جھرمٹ میں جگمگا رہا ہے. کیونکہ میرے نبی کا جلوہ ہی کچھ ایسا تھا کہ اگر آقا کہیں بیٹھ جاتے تھے تو چاند بھی شرما جایا کرتا تھا. ستاروں کی مانند صحابہ ہیں اور میرے آقا بدر منیر ہے. فرماتے ہیں کہ جس وقت سرکار جلوہ افروز ہے, چاروں طرف صحابہ اکرام موجود ہیں, ایسا لگ رہا ہے جیسا 14ویں کا چاند ستاروں کے جھرمٹ میں جگمگا رہا ہے. ایک صحابی حاضر ہوئے, آگے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ پر ہمارے ماں باپ قربان. سرکار جب ہم کسی پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں, کوئی مصیبت آ جاتی ہے, آقا در بدر کی ٹھوکریں نہیں کھاتے, آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں, ہماری مشکلیں آسان ہو جاتی ہے. یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ بارگاہ نبی میں حاضر ہو جائے, بڑی سے بڑی مشکلیں ہو آسان ہو جاتی ہے. صحابی نے آ کے آقا کی بارگاہ میں عرض کیا. میرے آقا نے فرمایا کون سی پریشانی آ گئی, کون سی مصیبت آ گئی؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ گھر میں بیٹی کی شادی ہے, تمام اسباب مہیا ہو چکے ہیں, تمام سامان کا انتظام ہو گیا ہے, مگر آقا ابھی تک کوئی خوشبو کا انتظام نہیں ہوا. صحابی کس لیے آتے ہیں؟ تحفے تحائف لے کے آتے ہیں. جب ہم اپنے آقا کی بارگاہ میں عرض کریں گے تو نبی کوئی شاندار عطر عطا فرمائیں گے, یہ دل میں خیال ہے. میرے آقا چاہتے تو وہ بھی یہ کہہ سکتے تھے اے میرے صحابی عطر چاہیے, خوشبو چاہیے, تو یہاں کیوں آئے ہو؟ بازار چلے جاؤ, مشک بازار میں ملے گا, عنبر بازار میں ملے گا, کستوری بازار میں ملے گی, وہاں سے جا کے لاؤ. مگر میرے آقا نے واپس نہ کیا, ٹھکرایا نہیں, بلکہ نبی نے ارشاد فرمایا اگر تمہیں خوشبو چاہیے ہے تو جاؤ ایک برتن لے کے آؤ. صحابی گئے
गए और जाके एक बर्तन लेके आए, मेरे आका ने ना मुश्क दिया, ना अंबर दिया, ना हिना दिया, ना कस्तूरी दी, ना कोई इत्र दिया, बल्कि इत्रों को जिस पर नाज है वो अपने जिस्म मुबारक का पसीना निचोड़ के बर्तन में दाखिल कर दिया। सुभान अल्लाह, बर्तन में पसीना डाला, सहाबी ने देख लिया है कि ये मुझको अंबर नहीं है, कोई हिना कस्तूरी नहीं है, बल्कि नबी ने अपना पसीना दिया है। सहाबी देखने के बावजूद चूम रहे हैं, आंखों से लगा रहे हैं, सर पे रख रहे हैं और दुनिया को बता दिया कि तबर्रुक का क्या मकाम होता है। तबर्रुक वो होता है जिसे आंखों से लगाया जाता है, सर में रखा जाता है। सहाबी खुश हो गए, घर में लेके आए। अल्लाह अल्लाह, जरा सोचो तो सही, घर में आने के बाद नबी का पसीना मुबारक दुल्हन के कपड़ों में लगाया गया। वो दुल्हन कितनी मुकद्दर वाली थी कि जिसके कपड़ों में नबी का पसीना लगाया गया। तारीख बताती है कि पूरा दिन घर महकता रहा, दूसरा दिन गुजर गया, घर महकता रहा, हफ्ता गुजर गया, घर महकता रहा, और वो घर खुशबू वालों के नाम से मशहूर हो गया। महीना गुजर गया, कपड़े बदल गए, साल गुजर गया, बल्कि एक मौलिक तो यहाँ तक फरमाते हैं कि उस दुल्हन का आखिरी वक्त आ गया, वो दुनिया से रुखसत हो गई, मगर उसकी नस्लों में भी नबी के पसीने की महक बाकी रही। हम दुआ करते कि अल्लाह ताला उस दुल्हन का सदका इन दूल्हा दुल्हन को भी अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाए और नबी की मोहब्बत लाजवाल दोनों दिलों में पैदा फरमाए। अगर हमारे अंदर इतना सा भी इश्क़ नबी की कमी है तो परवरदिगार अपने प्यारों के सदके में, गौसे आज़म के सदके में नबी की मोहब्बत का हमारे सीनों को मदीना बना दे और इसके सहाबा अता फरमाए, मोहब्बत औलिया अता फरमाए। परवरदिगार आलम की बारगाह में ये तकरीब जो होती है, इसमें ये देखना, लोग देखा करते, कोई देखता है मालो दौलत है कि नहीं, कोई देखता है हुस्न वजाहत है कि नहीं, मगर हमारे अकाबरीन ने फरमाया अल्लाह अल्लाह कि पहले ये देखो इसके दिल में इश्क़ नबी है कि नहीं, रसूल का इसके दिल में ईमान है कि नहीं। अगर ईमान है समझ लो वही सबसे बड़ी दौलत है। दौलत मिट जाया करती है, वजाहत मिट जाती है, मगर ये वो दौलत है कि खाली दुनिया तक नहीं रहती, बल्कि कल्ब की आगोश में भी नबी की मोहब्बत जाती है, मैदान महशर में भी नबी की मोहब्बत जाएगी, और जहां पर हर जगह काम आने वाली दौलत नबी की मोहब्बत है और हमारा ईमान है। अल्लाह ताला हमारे ईमानों को सलामत फरमाए, क्योंकि यही ईमान है। आपने तारीख पढ़ी होगी, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में एक सहाबी है जो बिल्कुल सूरत से बिल्कुल काले हैं, मगर नबी के सहाबी हैं। अगरचे वो काले हैं मगर बड़े बड़े औलिया से अफजल हैं, क्योंकि नबी के सहाबी हैं। आकाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक दिन पूछ लिया, नहीं बल्कि उन्होंने खुद आके कहा कि या रसूल अल्लाह, मैं आपकी सुन्नत पे अमल करना चाहता हूँ, मगर अफसोस होता है कि आज एक सुन्नत पे अमल होता है। ये तकरीबे निकाह सुन्नत है, एक सुन्नत पे निकाह होता, कितने फर्ज छोड़ दिए जाते हैं, नमाजें छोड़ दी जाती हैं, पर्दे छोड़ दिए जाते हैं। एक सुन्नत को अपनाने के लिए तुम फराइज छोड़ रहे हो, यह सख्त गुनाह है। मजा तो जब है कि हम सुन्नत को अपनाएं मगर फर्ज का दामन थामे रहे, फर्ज न छूटने पाए, तब मजा है। क्योंकि वो अल्लाह जिसने ये खुशी दी है वो एक लम्हे में गम भी दे सकता है। आपकी खुशहाली को मुसीबत में भी गिरफ्तार होने में देर नहीं है। इसलिए अपने अल्लाह को राजी करने के लिए फराइज बहुत जरूरी है। सहाबी आए, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, सोचता हूँ आपकी सुन्नत पे अमल करूँ, शादी कर लूँ, मगर आका मैं इतना काला हूँ कि मुझे कोई पसंद नहीं करता, कोई लड़की देने को तैयार नहीं। इतना कह के आंख में आंसू आए। जब आंख में आंसू आए तो हमारे आका किसी की आंख में आंसू बर्दाश्त नहीं कर पाते। आपने फरमाया क्या बात है, ये रोने की वजह क्या है, अश्कबारी की वजह क्या है? कहा या रसूल अल्लाह, यही है तो कोई रिश्ता देने को तैयार नहीं। अल्लाहु अकबर। आकाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अच्छा ये बात है, मेरे फला सहाबी के घर चले जाओ, उनकी बेटी बड़ी खूबसूरत है, उसको जाके पैगाम दे दो। अब जब ये सोचने लगे कि या रसूल अल्लाह, मैं तो काला हूँ, वो तो बहुत ही खूबसूरत है। तो आका ने फरमाया जाओ तुम पैगाम दे दो और कह देना कि रसूल अल्लाह ने भेजा।
गए, साहबी गए, दरवाजा बजाया, उस लड़की के बाप बाहर आए, पूछा क्या बात है? कहा नबी ने भेजा। कहा किस लिए? कहा आपकी बेटी से रिश्ता करना चाहता हूं। जैसे ये सुना, बाप तो बाप होता है, बेटी की मोहब्बत के जज्बे में आकर बेसाख्ता कह दिया, तुमने अपने आप को देखा है? कहा तुम और कहा मेरी बेटी, हुस्न जमाल का पैकर, और तुम अपना रिश्ता लेके आए हो। इतना कहना था कि अंदर से बेटी की आवाज आई, अब्बा जान रिश्ता मंजूर कर लीजिए, रिश्ता मंजूर कर लीजिए। बाप ने कहा बेटा तुमने देखा है ऐसे? कब देखने की जरूरत नहीं है, ये मत देखिए कि कौन आया, बल्कि ये देखिए भेजा किसने है। भेजने वाले रसूल अल्लाह। हमारे इसी का नाम तो ईमान है कि नबी ने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर, नबी ने भेजा है, क्या नबी ने भेजा, बिस्मिल्लाह कर दीजिए। ये होता है ईमान। देखो नबी की मोहब्बत देखो, अगर दिल में नबी की मोहब्बत है और ईमान सालिम है, इंशाअल्लाह तबारक व तआला, अगर दोनों ईमान वाले हैं तो बच्चे होंगे तो भी ईमान वाले होंगे। आपने देखा नहीं, बच्चों पर भी असर पड़ा करता है। ये जो माह मुबारक चल रहा है, किसका महीना है? सरकारे गौसे आजम रज़ी अल्लाह अन्हु का महीना।